It's amazing to have two very dynamic people together who are so passionate for the environment and for animals and for humans. There was a very nice saying, if slaughterhouses had glass walls, this world would be vegetarian. I actually saw 2 lambs being sacrificed. और जो उनकी चीखें थी ना सुधीर जी, मेरे आंसू नहीं रुके ना। एक हाई भी है ना, किसी को हम मार रहे तो हाई लग गए, तो वो हमें कभी सुखी नहीं कर सकता है. And believe me, if this world turns vegetarian, we can really save this planet. We'll solve Everyone literally does every know. issue, deforestation, water wastage, soil erosion, That's all true. relating to animal agriculture. मैं एक नया घर ढूंढ रही हूँ and I tell them, listen, I have a dog. The first question जो लोग हमसे पूछते हैं कि कौन सा breed है? I'm like, why do you care? ये अपना फंडामेंटल राइट है. कोई भी डॉग कैट जो है वो हम अपने घर पे रख सकते हैं. अगर मना करते हैं तो उनको एक ही बोलना है कि सर, अगर हम सड़क पे अगर कुछ क्रूरटी देखें, अगर कोई कुत्ते को मार रहा है, एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं उसको रोकने के लिए? यू गॉट लॉट्स ऑफ पावर. Do you think honestly that this world has any hope? यस, सी, I'm quite an optimist. I do think that there is hope. Hi guys, welcome to Kindness with Amy. Today I am joined by the illustrious Raveena Tandon, who is a national award-winning actor, Padma Shri award winner. She is also a social activist. She believes in women's empowerment, child welfare, and environmental conservation. She's the founder of the Rudra Foundation, and she is the Goodwill Wildlife Ambassador of Maharashtra. Welcome, Raveena. Thank you so much for joining me. My pleasure. I'm so excited. I obviously have been a huge fan of yours from all of your movies growing up. Such a big fan. So it's such an honor to have you here. Well, I'm actually very excited because when we did work together in Karma Calling, as we all know, but it was a very sweet revelation of the fact that you are so into animal care and love for our environment and love for the animals, and you've started a podcast, and here I am. I'm too excited about that. Thank you so much. And you know, I think it's such a beautiful thing when public figures like yourself choose to take a stand for the voiceless. And yourself. Thank you so much. Yes. And I love how outspoken you are about it. You know, I see your stories and you're always so out there standing up for those who don't have a voice. I think it's crucial actually in this day and age. It is very, because unfortunately, I don't think a lot of people are really aware as to how destructive we humans are being to this planet, and we are almost on a path of self-destruct. And that is happening slowly but surely. Yeah. And I think, unfortunately, people are so busy with their lives that they're not realizing how this will impact them and their future generations. It's all short-term planning. Yeah. Okay, I'm going to get married, I'm going to have children. But will your children have a great planet and a healthy planet ahead to live on? Exactly. What world do they live in? Exactly. Do we have a planet B? Yeah. So what is the point? I had this beautiful poster that I had put up as my DP for the longest time that says that when all the trees are cut and all the rivers and lakes are poisoned and our seas are dry and our marine life is dead and the plants and the greenery is all destructed under deforestation, what are we going to eat? Money. Green paper notes for a meal. What is the use of all that money when you don't have a healthy life? Yeah. Do you know how many children are born with asthma because of the pollution in all our metro cities? Yeah. Unfortunately. But then the problem is everyone's aware of it, but then no one wants to change how we're contributing to this. Absolutely. Absolutely. So there has to be a contribution, a little by little, from everyone. Everyone has to take a voice. I mean, see how wonderfully the students got themselves together. I call it KGF 3 because it's Kancha Gachi Bauli. And I love the way the students united, and for their future, Yes. they stood their ground for those acres. How many are hundreds of acres? And you could see the animals just being displaced and nowhere to go. They're going in people's homes and things like that. Yeah. So
So I think it's really, really important to unite and fight for what is left. We Yeah. need to conserve now. We've already done enough destruction. We probably are living on reclaimed land. Yeah. Your building, your apartment must be, my house must be on reclaimed land. But what is done is done. Now, for our future generations, we need to conserve what is Absolutely. there. Not only us, future generations of humanity. How will Absolutely. humanity survive if we don't have clean oxygen to live? Again, probably the rich will. When I see a doomsday ahead, I think about that ultimately it's the rich that will survive. The top 1%, that's it. Exactly, because Yeah. they'll have oxygen tanks and they'll have the Exactly. funding for oxygen chambers and blah blah blah. Exactly. What about the masses Yeah. that are going to be facing Yeah. these disasters, Yeah. natural disasters? Yeah. Because that's going to start happening very, very regularly But soon. it's always the poor that pay the price. That's In really every sad. disaster, That's in really every sad. situation, it's always the poor. So I believe that development and the environment can go hand in hand. You have to find ways around it. Yeah. It's not nobody's stopping anyone from development. But you have to plan it in such a way that what we have we conserve and Exactly. then go. So Exactly. overdevelopment is bad. Yeah. But then unfortunately it is strung in such a way the underprivileged are probably made to believe that oh, this development is for them, so fight for it, fight against the elite who are saying save trees. Yeah. So that is the saddest twist that politics takes. Yeah. So it's all vote bank politics in that, and then ultimately you are being trolled and one is being trolled. If you say save a tree, one is being told, oh, even you're living on that. I said, yes, we are. Yes, we did. We've destructed enough. हाँ, but और मत करो. But now let's not do more. Exactly. And it's not that nobody's saying do not develop. Develop, please, but in and around, use ways within, make overpasses, make underpasses, do things like that for the wildlife. Fence off places where, I mean, how many of our tigers and how many of our elephants are dying on railway tracks, on with these accidents happening all over the country because we don't have proper fencing in and around. So Absolutely. if those areas were fenced off and overpasses were made Yeah. on all our railway lines throughout the country, we'd be saving so much wildlife. Absolutely. Likewise, the highways. Absolutely. So development is great, much needed, but it should be planned in such a way that it's in and around the environment. Well, ma'am, we have been joined by a special Yes. guest who is joining our podcast, which is absolutely amazing. I'm sure you know of him. Yes, of We course all I know know. of him. He's a superstar in India and Bombay. Sudhir ji, would you kindly join us? Hi guys, welcome back. I am so excited and I'm so sorry for the disruption, but I'm also mega excited because we are joined by megastar Sudhir Kudalkar, who is the senior police inspector in Mumbai and founder of PAL Welfare Foundation and a passionate advocate for stray animals in India. Welcome. It's so amazing to have you. Thank you. Thank you. It's amazing to have two very dynamic people together who are so passionate for the environment and for animals and for humans. It's incredible. Both of you are very passionate animal lovers, and I read a quote yesterday that said that everybody is against animal abuse until you point out the abuse that they're eating. And I think it's so true because the moment we talk about, if someone is like saving a dog, right? Like we see these videos of like dogs being beaten and everyone is outraged and upset. लेकिन फिर वो घर आके दूसरे जानवर को खा रहे हैं. इसमें ये जो moral ये connect नहीं है. वो connect नहीं है. And I'm curious, like from your opinion, how do you think you can create that connection for people to understand the impacts of what they're saying, but then what they're doing? This is Senior Inspector Kudalkar. I am from Bombay Police. The question about being an animal lover, how can eat meat, yeah, chicken and any other. Okay. तो बेसिकली मेरा बोलना ये है कि हम अगर एनिमल लवर है या एनिमल से प्यार करते हैं या उनके लिए लड़ रहे हैं या हमारे घर में अगर कोई पेट है जो हमारा बच्चा है, वी आर ट्रीटिंग एज अ सन, ब्रदर
सिस्टर। तो हम एक तो दिखावा भी कर रहे हैं कि वी आर एनिमल लवर, हम फाइट कर रहे हैं, ये हमारा बच्चा है, घर पे ही दो, और घर आके फिर हम चिकन या फिश मटन खा रहे। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी मीन्स, देखो कॉन्ट्रडिक्टरी है। क्योंकि बेसिकली आई एम फ्रॉम कोकन, बचपन से मैं चिकन मटन खाते आ रहा हूँ, लेकिन लास्ट 4 ईयर से जैसे मैंने कोरोना से एनिमल वेलफेयर ज्वाइन किया, इनके लिए मैं अभी फाइट कर रहा हूँ, तो मैंने टोटली नॉनवेज खाना ही छोड़ दिया। आई एम नाउ प्योर वेजिटेरियन। ये मेरी मेंटालिटी है। एंड यू नो ये बात सुधीर जी सही कह रहे हैं कि दिस हैज टू कम फ्रॉम विद इन। आई हैव आल्सो बीन ब्रॉट अप इन अ होम वेयर mutton, chicken, you know, brain pav, all this keema pav and all was absolutely normal to eat. But I think it just hits you one day. And me, I think since the past 11-12 years, say, I've been, you know, off any kind of meats and stuff. And this happened to me when I actually saw 2 lambs being sacrificed. और जो उनकी चीखें थी ना सुधीर जी, वो भी मंदिर में हम लोग गए थे कहीं पूजा करने, और वहाँ बलि चढ़ रही थी 2 छोटे बेबीज की, और मेरे आंसू नहीं रुके यार। मैंने कहा कि इसके बाद मैं कान जोड़ती हूँ। उसी मंदिर में मैंने कान पकड़े, मैं कहा आज के बाद मैं कभी नहीं खाऊंगी। बलि तो आपके लिए चढ़ रही है, लेकिन मैं ये, क्योंकि लोग बोलते ना, अरे लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि आप तो वेजिटेरियन खाते हो, आप प्लांट फूल पत्ती वगैरह खाते हो, उनमें जान नहीं है क्या? बट देयर इज अ डिफरेंस, there's a difference के वो जो जानवर है जिसको आप मार रहे हो, वो चीख रहा है, उसके आंसू निकल रहे हैं, because it can feel pain. It has the pain receptors like us. Plants don't have pain receptors. आप एक फल तोड़ो, the plant will still grow and get another fruit. But आप एक जानवर को काटो, वो तो मर गया, खत्म, वो थोड़ी वापस दूसरा ब्रांच अपना ग्रो कर लेगा. So this is an argument. A lot of people, no, we were meant to eat non-veg because we have canines. Even chimpanzees and gorillas have canines, but they don't eat meat. Yeah. It is for us to eat sharp or dig into sharp fruits or whatever. Otherwise, we would have the tearing, you know, like how the saber-toothed tigers had those canines. We would have that then. Exactly. We're scavengers by nature, by design. We're scavengers. Yes, We're agreed. And hence people, when they were not hunters, they turned into hunters and gatherers, because when there'd be no fruits or they had not started agriculture yet. So they would probably, you know, I was, पता नहीं आपने आचार्य प्रशांत का वो एक टॉक ऑन वेजिटेरियनिज्म सुना है कि नहीं? बहुत बढ़िया बोला है उन्होंने। बोला है अगर हम में वो prowess होती actual hunter बनने की, like a predator and only to live on meat, then we would also have those long nails. We would also have that kind of acidic, proportion in our bodies to digest raw meat. Why do we cook the meat and eat? Why don't we eat raw meat if we were supposed to be hunters or predators? So these are a lot of arguments that go on, but I still feel कि इंसान में जब अंदर से वो जागृता एक आती है ना, तो then you become, like I said, I have also been born and brought up. It took me time to slowly leave everything. I started with leaving mutton, then I left chicken, then I left lobster, crab, everything. Then it's like just slowly वो जागृता आ गई. फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये मत खाइए. Exactly. I mean, it's like with anything. कोई भी आपसे कहे कि जो आप कर रहे हो गलत है, मत करो. You know, immediately it's human nature to push back on that, because someone is challenging your thought process. So as man said, that has to come from you, and that comes from life experiences. We can like convince you saw them those goats. कि एक मीन्स हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, हम कन्विंस कर सकते हैं, अवेयरनेस कर. I'll quote विद्युत जामवाल. So वो विद्युत जामवाल हमारे एक एक्टर हैं, बहुत ही गुड लुकिंग है और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी है उनकी. He is good looking. Yes, तो एमी. तो उनके एक मैं देख रही थी उनका एक इंटरव्यू, और उनके जो इंटरव्यूअर था उसने उनसे पूछा कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है और आप वेजिटेरियन हैं, तो ऐसे कैसे, मतलब आप ओनली विद वेजिटेरियन इतना स्ट्रॉन्ग वर्कआउट वगैरह करके प्रोटीन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो उन्होंने एक ही अच्छा बोला, उन्होंने पूछा
घोड़ा मटन खाता है क्या? बट इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल. उसके मसल्स देखिए, उसकी लीन बॉडी देखिए. They all are veg. So it's not necessary, you know. It's people think, oh, it's so necessary to have, but I think जैसे कि सर भी बोल रहे हैं कि फोर्स नहीं कर सकते. वो अंदर से एक जागरूकता आ जाती है कि ठीक है, ये लेवल पे हम और एक दूसरी जीवित चीज को हम इतना दुख और इतना पेन, इतनी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते. और सेकंड थिंग, हम अपने दिल या मन से इतना स्ट्रांग होते हैं कि अगर सामने कोई अच्छे अच्छे आइटम भी होते हैं चिकन के, या अपने फ्रेंड सर्कल में हम अगर कभी पार्टीज में या कहाँ जाते हैं और वो लोग बहुत खुशी से और एंजॉय करके खा रहे हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं होता है कि हम भी खा सकते, क्योंकि वो सामने से एंजॉय कर रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं खा रहे हैं. बट हमारा मन ही नहीं होता, क्योंकि हमने वो ठान लिया है कि अभी इसके बाद हमें नहीं खाना. ये इनके जो एक आंसू है, उनका दर्द है, या उनकी एक हाई भी है ना. किसी को हम मार रहे हैं तो हाई लग गए, तो हाई और पीड़ा को हम अपने शरीर में ले रहे हैं, तो वो हमें कभी सुखी नहीं कर सकता है. तो हम हमारे जो एनिमल लवर या हेटर्स है या और जनता है, उनको भी हम यही एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्योर वेज आप खाइए. प्योर वेज में भी मज़ा है, जो नॉन वेज से ज़्यादा मज़ा प्योर वेज में, और ज़्यादा आइटम्स है वेज में भी, तो बी वेजिटेरियन. And there's also a lot sort of misinformation online जो हम देखते हैं आजकल इन्फ्लुएंसर्स से, लोगों से जो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं हेल्थ के बारे में या जानवरों के बारे में या एनिमल प्रोटीन के बारे में. एंड सो लोगों को शायद पता नहीं है कि वो कितने हेल्थी हो सकते हैं वीगन या वेजिटेरियन होके, कि एनिमल प्रोडक्ट जरूरी नहीं है आपको हेल्थी होने के लिए. अभी फॉर एग्जांपल के एक्चुअली देयर वाज अ वेरी नाइस सेइंग. सो पॉल मैकार्टनी डिड से दिस, that if slaughterhouses had glass walls, everyone, this world would be vegetarian. And believe me, if this world turns vegetarian, we can really save this planet. We'll solve Everyone literally does every know. issue, like when it comes to that. deforestation, the problems with land, problems with water wastage, soil erosion. Pretty much most of our issues that we are facing right now, breeding. exactly, Is meat industry. all relating to animal agriculture. So, but the problem is, you know, it's like even when you look at these like COP29 and all these events, they don't talk about animal agriculture. It's like something people just don't want to talk about. It's a lobby, you know. It's everyone's lobby, and everything is lobby. Everything is lobbying, and everyone is, I mean, let's face it. Yes. It's political vote bank, it's lobbies, it's whose pockets are being filled. Yeah, but that is what I said. What will they eat when this world is finished? You know, their banknotes. Do you think honestly that this world has any hope, you guys? Like with the like be real, with the direction that things are going in, like what do you think the next 20-30 years are looking like for us? Yes, see, basically हम जो आज जिस राह में चल रहे हैं, उसको चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है, उसमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि टुडे हम जितना अवेयर कर सके, या जितना भी हम लोगों को कन्विंस कर सके कि नॉन वेज से दूर रही है, या वेज खाना खाइए, या क्रुएल्टी जो हो रही है, वो क्रुएल्टी को देखो, हम 100% बंद नहीं कर सकते, कि उसको स्टॉप नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स मेंटालिटी ऑफ पीपल. उसमें कोई एबनॉर्मल भी होता है, या कोई अपनी बड़स मीन्स अपना गुस्सा किसी और पे निकालना है. किसको, जो अपने से वीक है उसके ऊपर ही निकाल सकते हैं ना आप. अगर किसी ने कोई डॉग या कैट को अगर मार रहा है, तो उसको अगर मैं बोलूँ, अरे तुम्हारे में सही में गट्स है तो मेरे से लड़ना है, तुम्हारे पावर, वो सामने से आपको डिफेंड नहीं कर, वो ओनली मार ही खाएगा. अगर डॉग को आप रॉड से मार रहे हैं, तो वो ऐसे ही पड़ा ही रहेगा, मार ही खाएगा, और वापस अगर वो जिंदा रहे तो वापस उधर ही आएगा. उसको मालूम है कि यहाँ आने से हमें मार ही मिलने वाली है, यहाँ हमें खाना नहीं मिलेगा.
तो ये मेंटालिटी हम स्टेप जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर है, चैनल है या पॉडकास्ट है या लोगों से या मीडिया और अभी इंस्टाग्राम इज़ वेरी पावरफुल। तो इंस्टाग्राम के थ्रू हम जितना भी अवेयरनेस और लोगों के सामने आके अगर उनको कन्विंस करने की कोशिश करें तो माइट बी इट विल बी मिनिमाइज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर, अगर हम सड़क पे अगर कुछ क्रूरटी देखें, अगर कोई कुत्ते को मार रहा है फॉर एग्जांपल, हम एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं उसको रोकने के लिए? सी, एक नॉर्मल पर्सन यू गॉट लॉट्स ऑफ पावर बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या लॉज इतने स्ट्रांग है। ऑफकोर्स इस बेलेबल है लेकिन लॉ है। तो अगर आप रास्ते से जा रहे हैं या कोई गाड़ी उड़ा के कोई कैट या डॉग को उसको मार डाला, अदरवाइज कोई रॉड से मार रहा है या उसको इंज्योर कर रहा है, तो इमीडिएटली देखो हमारे पास आज के सदी में हमारे पास मोबाइल में कैमरा है, जो फैसिलिटी में भी बिफोर 10 या 15 ईयर्स नहीं थी, क्योंकि वो अलग से कैमरा ला के हमें वीडियो शूटिंग करना पड़ता था। तो उसको एक वीडियो बनाओ या फोटो निकालो ताकि इट विल बी अ एविडेंस एज अ प्रूफ। क्योंकि कल देखो हर जगह पे हमें सीसी कैमरा नहीं मिलेगी, तो ओनली आई विटनेस पे केस नहीं चलती है। ठीक है, तो हम पुलिस को ही बता सकते हैं और अगर केस कोर्ट में चलती है तो वहाँ भी हम वो प्रूफ दिखा सकते हैं। तो एक है हम उसका इमीडिएटली एक वीडियो या फोटोज बनाए या So don't start beating the guy. Yeah, Just take a तो video. हाँ। Okay. Damn. नहीं क्या देखो बीइंग मीन्स उसको हमें स्टॉप करना ही है, नो डाउट, लेकिन मे बी हमें खुद को भी सेफ रखना है। शायद वो रॉड वो आप पे ना आए, जो होता है आजकल फीडर्स वगैरह पे इतने हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ये फीडर्स? Yes, I've feeders seen को मार रहे like हैं। लॉ को प्रोटेक्ट नहीं करता है फीडर्स को। नहीं करते हैं लेकिन वो उसमें टाइम जाता है और इमीडिएट उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो हमें खुद को भी सेफ रखना है, सेफ रख के उसको प्रिवेंट करना है कि ये तो गलत कर रहा है। इमीडिएटली 103 और 100 नंबर बुला के पुलिस को बुलाना है। पुलिस के साथ फिर हम अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उसका एफआईआर बनेगा। अभी BNS 325 जो सेक्शन है और प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960 का 11(1)A, ये दो सेक्शन हम लोग उनके ऊपर एफआईआर बनाते हैं अगर इंज्योर करते हैं या मार भी डालता है, दोनों के लिए 325 है। अभी ये एफआईआर होने के बाद पुलिस उसको अरेस्ट करती है, फिर वो इट्स अ बेलेबल ऑफेंस है। तो मैंने इसके पहले भी बहुत बार मेरे इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में बोला है कि अभी इंडियन पिनल कोड से BNS जो कन्वर्ट हुआ है, तो पहले 428, 421 IPC थे, अभी 325 हुआ। तो मुझे सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि ये नॉन बेलेबल किया जाए, क्योंकि लोगों के मन में डर होना जरूरी है कि आज मैं कोई डॉग या कैट को मार डालता हूँ तो मुझे कम से कम 3-4 दिन पुलिस कस्टडी मिलेगी, मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा। इट शुड बी मोर देन 25,000, क्योंकि वो पुराने जो लॉज है उसमें ओनली 50,000 ये 1960 के है। मीन्स 1960 बोला तो ये 60 ईयर्स बैक, तो 50 रुपीज़ की आज वैल्यू 50,000 है। 60 ईयर्स बैक जो 50 रुपीज़ थी, मे बी वो टाइम पे वो बहुत बड़ी अमाउंट That must have been a big amount, yeah. क्योंकि वो घर चलता था 100 रुपीज़ में हमारे जो दादाजी बोलते हैं, हाँ वो टाइम पे। तो ये जो फाइन है इट शुड बी मोर देन 25,000, ताकि उसको लगे देखो आज मैं इसको मारूंगा ना तो मेरे केसेस 25,000 जा रहे हैं। तो ये लो कैटेगरी वाले जो है ना उनके लिए सबक है ना कि मेरा पैसा जा रहा है 25,000। Correct, of course. They'll think twice. हाँ, उनके मन में है ना पैसा कैसे जाएगा, डर बिठाना डर पड़ेगा। बिठाना जरूरी है। सेकंड थिंग, उनको कम से कम 2 या 3 दिन की पुलिस कस्टडी होना चाहिए, क्योंकि आज क्या है इमीडिएटली उनको बेल, देखो पुलिस को भी बेल देना है क्योंकि लॉ में लिखा है, नहीं देंगे तो वापस यहाँ वहाँ से ह्यूमन राइट्स है या जो भी है वो लोग बोलते कि अगर वो बेलेबल है तो बेल क्यों नहीं दे रहे, उसको कस्टडी में क्यों डालते हैं। पुलिस कस्टडी के बाद उसको समझता है
कि मैंने कुछ जो क्राइम किया है वो गलत है और मुझे आज 2 दिन, और क्योंकि देखो कस्टडी में बैठना जो नॉर्मल पर्सन एक घंटा भी नहीं बैठ सकता, Correct. इतनी बैड कंडीशन होती है Really? ये, ऑफ कोर्स, यस, Hope I never हाँ, find यस, it. नहीं नहीं No, besides the humiliation, it's also a deterrent. तो ये बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, that we need these strong deterrents for people to realize what they're doing is committing a crime actually in a way. और वो किसी की फाइन जान ले रहे हैं ना, जिंदा जो हमारे साथ आज खेल रहा है वो 2 मिनट में उसको आप मार रहे हैं ना, इट्स मर्डर एज पर, अगर वो इंसान होता तो मर्डर 300. Correct. You know, my view on what you did ask earlier about is there hope? I'm quite an optimist, honestly. You are? I am. I do think that there is hope in a way because एक तो कहीं ना कहीं जो हमारी अभी आने वाली पीढ़ी है, the new generation, they are being taught environment and conservation, deforestation in schools. At least that's become a part of their curriculum. The syllabus does have a certain segment which talks about all this, so kids are aware. I remember when Rasha was only 4 or 5 years old and Anil ordered, we were I think in the Bahamas or somewhere for a cruise. Rasha meri beti hai, so Anil turned around and told them, oh okay, I'm gonna have lamb, my husband, so and I don't eat, so I didn't put this into her. But she just turned around and said, Papa, how can you eat lamb? And she started crying. How can you eat someone's baby? What if someone eats me then? Wow. And Anil for a second was shaken and did not have, then said, yes, please cancel it, you know, That's kind of very thing. emotionally intelligent of her. Yeah. She was just about 5 years old. And she said, how can you eat someone's baby, Papa? What if someone eats me like that? So he could shaken, you know. छोटे बच्चे पे अवेयरनेस होना जरूरी है. अगर कोई Exactly. किसी की माँ और अगर किसका फादर भी अगर कोई डॉग या कैट को मार रहा है, Yeah. अगर बच्चा उसको बोले कि आप गलत कर रहे हैं, आप मत करो, क्योंकि उसको भी दर्द हो रहा है, उसको भी पेन हो रहा है, तो उसको मत मारो, तो ये इफेक्ट हो जाता है. But you know, and the thing is that she was really young. तो I know कि ये आज के जो generation है वो ज़्यादा aware है. एंड इसलिए तो अभी जो हैदराबाद में हुआ है बिकॉज द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग. लेकिन एक जो पॉलिटिकल विल जो होनी चाहिए ना, वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि क्या होता है कि इन लोग हमको स्कूल्स में तो सिखा रहे हैं, बच्चों को तो स्कूल्स में सिखा रहे हैं, लेकिन जब बच्चे उठ के लड़ना चाहते हैं, चाहे वो आरे फॉरेस्ट हो, चाहे वो मैंग्रोव्स हो, चाहे वो अभी हैदराबाद में जो हो रहा हो, तो फिर आप उनको पॉलिटिकल प्रेशर से दबा देते हो, आप उनको ब्यूरोक्रेसी से दबा देते हो, आप उनको पुलिस के हेल्प से दबा देते हो. एंड पुलिस वाले भी, अभी वो कितना एक अच्छा इंसिडेंट था अभी जो आया कि पुलिस वाले खुद वो झाड़ों की छांव में बैठे हुए थे जो वो कटवाने आए थे. Did you see that? That हैदराबाद वाला, yes, yes. Yeah, हैदराबाद में जो उन्होंने पूरे झाड़ काटे, फिर जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये वो इतनी गर्मी थी कि जो पुलिस वाले थे खुद उनकी सबने वीडियो ली, वो लोग खुद जो झाड़ जो बचे थे उनके छांव में जाके बैठे हुए थे और अपने आप को पंखा दे रहे थे. तो अल्टीमेटली दिस इज ह्यूमैनिटी, यू अंडरस्टैंड. तो ये वहीं पे इट्स आयरॉनिकल द होल सिचुएशन कि हम ही बच्चों को एडुकेट कर रहे हैं और जो हमारी जनरेशन है उनको एडुकेट करने के बाद हम ही उनको दबा रहे हैं. पर कहीं ना कहीं ये जो जोश है ये बढ़ेगा. तो वो आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस कि शायद जैसे आवाज उठी हैदराबाद में, आई एम होपिंग सब जगह ये हो, और कहीं ना कहीं हर जगह ये देश में हो ही रहा है. तो राइट, यू आर राइट. सेकंड थिंग, आप जैसे बोलते हैं कि ये कॉलेज या स्टूडेंट मीन्स हर एक कॉलेज में एक सेमिनार लेना भी जरूरी है. बहुत सारे सो कॉल्ड एनजीओज ऑर्गेनाइजेशन हैं, फाउंडेशन है जो एनिमल के लिए काम कर रहे हैं या एनिमल के लिए फंडिंग कर रहे हैं, एनिमल के नाम पे पैसा भी ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज अनदर पार्ट. लेकिन ये जो मैडम ने आज जो रवीना जी बोला कि ये जो छोटे बच्चे जो हमारी फ्यूचर है, उनके ऊपर अगर आज से ही हम अगर ये इम्पैक्ट डाले या उनको मन में कि वो नहीं दिस इज एनिमल क्रुएल्टी, ये नहीं होना है, तो हम हर एक कॉलेज में, जैसे हमने पाल फाउंडेशन ने बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारे स्कूल में हमने सेमिनार लिए भी है और हमारे मीन्स कंटिन्यू चालू है. तो अगर उनके ऊपर अगर हम अगर एक
कन्विंस करे कि ये छोटे बच्चे ही है और बच्चे से ही अगर स्टार्ट करते हैं तो मे बी नेक्स्ट जनरेशन है जो हमें आज क्वालिटी मिल रही है। हम जो देखते हैं जगह जगह पे सोसाइटीज़ में देखते हैं या हर जगह, तो शायद वो कम हो जाए या मिनिमाइज होए। तो हर एक कॉलेज में अगर एक सब्जेक्ट भी रखे एनिमल्स के लिए तो भी इट्स वेरी फाइन। तो मेरी सरकार से जो दरख्वास्त है या मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनको कि एक तो ये जो लॉ है उसको नॉन अवेलेबल बनाओ ताकि लोगों के मन में डर बैठे कि मुझे आज 3-4 दिन की पुलिस कस्टडी जाना है। ये जो फाइन है वो फाइन मोर देन 25,000 वो करना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। और देखो कितना भी बड़ा पैसे वाला हो उसको अगर किसी से पैसा जा रहा है तो इट्स विल बी मीन उसको पता रहने नहीं मेरा पैसा जाने वाला है। तो आज जो वो डर है ना वो डर नहीं, वो डर होना ज़रूरी है। सर क्यों ना हम सब जितने एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने काम करने वाले हैं हम लोग को वी हैव टू बी यूनाइटेड अंडर वन अम्ब्रेला एंड देन मेक दिस पेटिशन और फिर सरकार को ये पेश करें। आई थिंक अपर में इस पे बात एमी वी शुड काइंड ऑफ स्टार्ट दिस बिकॉज क्या अभी रैंडम हो रहा है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उधर से आ रहा है रिक्वेस्ट, इधर से आ रहा है रिक्वेस्ट, अलग से एक कंसोलिडेटेड इंटेंशन एक है। हाँ तो सब मिलके करेंगे तो यूनाइटेड होके करेंगे तो आई थिंक वो एक जैसे बोलते हैं ना मुट्ठी बन जाती है, वो स्ट्रॉन्गर होगा। एमी लेट्स डू दिस यू एंड I really like this because जो आपने कहा था about having something built into the curriculum, because I think children are born empathetic. What happens is we grow up in our communities, in our societies, वो जो empathy है अंदर से ना वो चला जाता है because we fall into materialism, consumerism. That is not there. So that is where the education comes in कि बचपन से that needs to be nurtured. Correct. And that is not only a school's responsibility. ये हम माओ की, हम पिताओं की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की, कि बच्चों को कंपैशनेट, काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से सिखाएं कि अगर आपका बच्चा पत्थर उठा के एक कुत्ते के बच्चे के ऊपर फेंक रहा है या बिल्ली के पूंछ पे पटाखे डाल रहा है, तुरंत ही उसको बंद करें इमीडिएटली। क्योंकि क्या होता है, इट इज एक्चुअली अ साइंटिफिक स्टडी, स्टेटिस्टिकली सर, जितने ये जो क्रिमिनल्स हो जाते हैं, वाइफ बीटर्स हो जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूजर्स हो जाते हैं, दे ऑल स्टार्ट विथ बुलिंग स्मॉल एनिमल्स। उनकी शुरुआत वहां से होती है और उनको क्या लगता है कि अरे इसको मारने के बाद तो मुझे कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली जो उनका वीकर है, करेक्ट, दे नॉट they're not taken to task at that time, so they grow up always bullying the weaker, and they most of the time they grow up into hardened criminals. So this is a statistic which has been proved. So जहाँ आप देखें एक बच्चा कहीं cruelty कर रहा है या कुछ कर रहा है, I have done that at the risk of people taking my video and trolling me. मैंने रास्ते पे रोक के मैंने एक लड़के को, वो छोटा पपी था, उसको बुली कर रहा था, मार रहा था ऐसे, मैंने कहा मैं तेरे को ऐसे खींच के चांटे मारूं, तेरे को कैसा लगेगा? मैं कहा मैंने अगली बार देखा ना तुझे इसको मारते हुए, तू देख मैं वापस आऊंगी यहाँ पे। आई स्कैर्ड हिम लाइक दैट। मैं शूटिंग पे थी। Love that you did that. मैं कहा मैं वापस आऊंगी और फिर वैसे ही तेरे को कान के नीचे रख के दूंगा। हर एक ने इनिशिएटिव लेना जरूरी है। थोड़ा मीन्स क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मीन्स अरे वो क्या बोलते हैं, अरे क्यों इसमें ये झंझट में क्यों पहनना है, नहीं, लेकिन उनको दिखाना है कि इसके लिए भी कोई बोलने वाला है। करेक्ट, कि बाबा तू आज ये गलत कर रहा है। अदरवाइज वो बोल अरे ये देखो पब्लिक देख रहे हैं, कुछ कोई नहीं बोल रहा है, मीन्स उसको ये भी लग रहा है कि दे सपोर्ट मी। एग्जैक्टली। हाँ, अगर कोई बोलने वाला भी है, करते आज जो हमारे फीडर्स और रेस्क्यूअर्स है वो मार खाते भी है लेकिन उनको स्टॉप करते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा देखो, दैट फीडर एंड रेस्क्यूअर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि आज वो उसको कुछ हुआ तो कल उसका फीडिंग कौन करेगा, या उसके घर में जो कोई वो रेस्क्यूज कैट डॉग है उसको कौन देखेगा। इसलिए उसने अपनी सेफ्टी भी देखना है और सेफ्टी के साथ उसको एविडेंस भी निकालना है। जो आपने बोला था ना कि जब भी कोई मार रहा है तो क्या करना है, तो कुछ को सेफ रख के उसको भी बचाना है। I want to know, sir, from the law's perspective, like I think about it from, okay, अगर let's say आज मैं इस podcast के बाद मैं घर जा रही हूँ, okay, I'm on the street, okay, if I see someone really hurting an animal, my instinct is to beat the shit out of that person. That's just my instinct, okay, but show me your muscles, Amy. okay, not okay, cut, delete.
But the thing is, that is my gut instinct, okay? Whether I'm successful or not. But the thing is, law ke hisab se, will I be the one who gets in trouble? Like, if I hurt that person, okay, will I get in trouble for protecting that animal? You should equally. No, you're not protecting. See what you've done. I mean, I would answer as a lay person. I would not go onto the path of violence, but yes, I would record and I would then make a case against, because you are equally to blame them then, because you chose the path of violence instead of stopping the person. I mean, if I try and stop him and I'm not being able to, and I See, have for to, like, your safe, your protection, इस सामने से अगर अटैक कर रहा है, हाँ, then you can defend, no? अगर आप उसको तो वो आए क्लियरली आएगा ना, सीसी कैमरा में आएगा, लेकिन उसके ऊपर आप एफआईआर बनाओ. देखो, एफआईआर आज अगर बेलेबल ऑफेंस भी है तो उसका मैं एक इन फ्यूचर उसके लिए कितना वो में डेंजर है या उसके लिए भी कितना मुश्किल हो सकता है ये भी मैं बताता हूँ. अगर आज एफआईआर बनाए, चलो वो बेल पे गया, ओके, लेकिन वो केस अगले 4 साल चलेगी, 5 साल, जब तक उसका फाइनलाइज होता नहीं कोर्ट में. अपनी इंडियन कोर्ट आपको मालूम है 5-5, 6-6 साल चलता है. तो उसको एज ए एक्यूज उसको हर डेट को उसको हाजिर रहना है, अटेंड रहना है. लाइक मीन्स अगर जैसे मर्डर किया है किसी ने या रेप किया है तो वो जो एक्यूज को जो लॉज और जैसे उसको अटेंड रहना है वैसे इसको भी रहना है, क्योंकि ही इज एक्यूज. उसका पासपोर्ट या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो पुलिस देते हैं तभी वो मेंशन हो जाता है कि 1 केस रजिस्टर अगेंस्ट हिम, तो उसको पासपोर्ट रिन्यू नहीं होता है. उसको आउट ऑफ इंडिया जाना है तो उसको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है कि अदरवाइज वो आउट ऑफ इंडिया या किधर जा भी नहीं सकता है. तो ये सारे मुश्किलें भी उसका आ सकती है. और इन केस अगर हम वो केस एकदम परफेक्ट बना के चार्जशीट अगर हम कोर्ट में सबमिट करते हैं तो उसको मोर देन 1 ईयर या 2 इयर्स की उसको प्रिजन भी होता है. okay. तो ये है. तो आज अवेलेबल है, आज वो छूट गया है, लेकिन इन फ्यूचर क्या हो सकता है उसका ये भी उसने जाना चाहिए. तो दिस इज मैसेज फॉर एनिमल हेटर. मैं आपके थ्रू मैं एनिमल हेटर को ये भी एक मैसेज देना चाहता हूँ. आप उसको आज मार रहे हैं, आपके ऊपर एफआईआर बन रहा है, आज आप बेल पे भी है, लेकिन इन फ्यूचर आपका देखो आपको क्या क्या मुश्किलें होने वाली है आपके साथ. तो ये भी आप ध्यान में रखो. और आगे अगर ये क्राइम करना नहीं करना है, बिकॉज ये क्राइम आप पुलिस रिकॉर्ड में आ गए हो, आपका नाम अगर टाइप करेंगे तो इन आपके सामने एफआईआर नंबर डैट अंडर सेक्शन दिस यस वो आने ही वाला है. तो आप संभाल के रहो. बीइंग ए एनिमल हेटर, मैं आप क्योंकि आपकी भी मुझे चिंता है, बिकॉज यू आल्सो ह्यूमन बीइंग. तो आप ये मत करो. यस मैम, हमने सुना था कि जब आप अरण्यक शूट कर रही थी that आपने 14 पपीज को रेस्क्यू किया था. Can you Yeah. share this heartwarming story because that's lovely. हम लोग शूटिंग कर रहे थे कुल्लू मनाली में और मुझे काफ़ी फ्री डेज मिलते थे. तो कुल्लू मनाली में आप यकीन नहीं करोगे, हम लोग सब जाके ये लोग, एक तो मैं ब्रीडर्स की बात करूंगी और लोगों की बात करूंगी जो शौकीन हैं एनिमल्स के, लेकिन वो सोचते हैं ब्रीडर्स से खरीद के आए तो बहुत ही पेडिग्रीड वाला डॉग मिल गया, ये हो गया वो हो गया. फिर वो खरीद के लाते हैं, उन्होंने पैसे तो डाल दिए उसमें, फिर वो 3 महीने सोचते हैं अब हम तो संभाल नहीं सकते, ये तो सुसु पोटी ये वो करता है, भैया रास्ते पे छोड़ दो या तो किसी शेल्टर में जाके दे दो. अब ये बात मैं आपको बताऊं, जो हमारे हिंदुस्तानी देसी कुत्ते हैं वो इतने मजबूत और इतने खूबसूरत हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती. अभी हम लोग मनाली में शूटिंग कर रहे थे और कभी हम लोग शूटिंग पे जाते थे आगे पीछे, इतने खूबसूरत बेचारे पप्पी, कभी किसी ढाबे के गाड़ी के नीचे बैठे हुए हैं, ऐसे राउंड फर बॉल्स इधर उधर. लेकिन मैं परमिशन लेती थी जहाँ पे भी थे वो उधर, वो लोग ढाबे वाले कभी खाना डाल देते थे, तो मैं उनसे पूछती थी कि ये पपीज़ हम उठा लें क्या, ले लें क्या, कोई ना कोई हम लोग में से ले लेगा. तो वो बोलते हाँ ले जाइए, नहीं तो वो तेंदुआ आके ले जाएगा. तेंदुआ मीन्स लेपर्ड. Oh. So in the hills, most of these puppies are picked up by the leopards as snack. so poor thing. So from various locations, wherever we'd be shooting, there would be puppies there. Now I was shooting for Welcome Again here in ahead of Malad, Goregaon, and over there also there was one puppy, and my character's name is Zoya in the film.
So there was one puppy who me, Jacqueline, everyone, Disha, we all used to play with. And then when the time came, the schedule pack up, we were there for nearly like 30 days. So we were all feeding her in the afternoon and she used to play with us. I said, how can we just leave her alone? So now she's with me at the farm. And I've called her Zoya. So she was 6-month puppy. The only dog in that whole open field और इतनी गर्मी, मैं कहा इस बच्चे को कैसे छोड़ के जाए? So I called the animal ambulance and I had her taken to my farm, and now she's happy there with the other dogs. So it's just that if I see a baby on the road, I can't just leave it to be, run over or be picked up by something, or I just pick it up. And yes, we did rescue about. It became a mission for all of us. So Rohan Sippi, in fact, he's adopted one. He was the producer of Aranyak. Our DOP, he adopted one. The stylist adopted one. And oh my god, I love this. The yeah, whole so casting everyone, crew. had one puppy literally. One puppy I sent to Shimla. One puppy went to Chandigarh to a colonel's house. So like this, I got them. One puppy got adopted in Manali itself. 2 puppies were picked up by my makeup artist. We called them Bella and one more name. So it's like this. 2 puppies my maid sent to her farm because the Bombay weather was not so good for them. So she sent to her. Now her brother wanted Coco and one Blackie. They went there. So everyone adopted these puppies, and it was so cute. In fact, some of them were so cute, but in such bad conditions. Wow. One was so malnourished that I thought in 2 days, if she doesn't survive, I'll probably have to take her to the vet and put her down because they were in a gutter. Couple of them we rescued from a gutter. And this one had diarrhea. You won't believe that when we dewormed them, there'd be like worms came out like snakes. And unke पेट में बेचारों के पत्थर थे. They were pooping out stones because they were so hungry that they would eat and crunch stones. So it was really sad condition. So I picked up as many as I could and got them all adopted everywhere. 2 of them, one of them is now at my farm, Legend. Oh. And उनको वो जो dogs हैं ना, आप उनको देखोगे ना, like if you see Rohan Sippi's dog, Luna, you'll ask him, what breed is this? It's a beautiful dog, yeah. Indies are such beautiful dogs. Beautiful. So it's just where you give them that healthy nutrition and you see them flourish. And they're so smart as well. Oh, very intelligent. And they are all weather dogs. Yeah. They can survive through any condition, which is so beautiful. But most of the dogs that even I have in my house are all either abandoned or rescued. We just, there's another German Shepherd whom we just rescued from Paw Adopt. Then one dog came, Azad, my daughters named him Azad. He came from Anubis, Tiger Anubis Foundation. So my puppies are all, she's adopted. So it's all, if you follow my Instagram, it's Living It Up with Lucifer. I have all these rescue stories on them. That's In fact, you guys can put a few videos out of that. Absolutely. From those, because this dog, like I was saying, was completely malnourished, had diarrhea. Picked her up and she was trembling. She was blind. I mean, my crew has seen. So I have such beautiful photographs of me and my crew. Literally, जो मेरे makeup man और hairdresser थे, उनकी हम लोग जुएं निकाल रहे हैं, उनको नहला रहे हैं. It was जब हमको break मिलता था यही था. तो Rohan had named me the dog napper of Manali. He's saying, Ravina, That's the fine. police That's a station. good title. I like it. There's a wanted poster of yours called the dog napper of Manali. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी मैं एक नया घर ढूंढ रही हूँ, okay, like to rent, alright, and जब मैं application करती हूँ and I give them my profile and everything and I tell them, listen, I have a dog. The first question जो लोग हमसे पूछते हैं कि कौन सा breed है, I'm like, why do you care कि मैंने बता दिया ना कि कुत्ता है, matter क्यों करता है कि कौन सा breed है? और फिर मैं बोलती हूँ, I'm very proud I have an indie, what's the problem? And I say I have an indie dog, rescue indie dog. And they're like, आधे तो कहते हैं हमसे कि नहीं. I'm like, why? What Really? the fuck difference does it make if it's an indie or a beagle or a border collie? Like, why do we care about this? And how does that impact my dog being suitable to live in a house? तो but ये जो है ना, ये बहुत ingrained वाला psychological thing कि breed है तो it has this. ये भी है. और second thing, बहुत सारे societies they don't allow for dogs. They trouble people, yeah. रेंट में अगर किसी को देना है
तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप अगर वो पूछे जो रेंटेड पर्सन है मेरे पास डॉग या कैट है, देन दे रिफ्यूज। तो इसमें भी एक लॉ है एज पर सोसाइटी बायलॉज में कि नो एनी मैनेजिंग कमिटी, जो सोसाइटी की मैनेजिंग कमिटी है, दे वोंट प्रिवेंट यू टू रेंटेड एनी फ्लैट, क्योंकि ये अपना फंडामेंटल राइट है टू कीप एनी मीन्स इंडी हो या ब्रीड हो या कोई भी डॉग कैट जो है वो हम अपने घर पे रख सकते हैं। कोई ही सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी है आपको मना नहीं कर सकते। Really? Oh, I didn't know that. यस। और सेकंड थिंग, अगर वो मना करते हैं तो उनको एक ही बोलना है कि आपके लेटर हेड पे आप राइटिंग में दो कि पेट्स आर नॉट अलाउड इन आवर सोसाइटी। तो अगर वो ऐसे लिखे देते हैं तो इट विल बी अवर एविडेंस। कल क्या होता है, कल अगर आप हमारे पाल फाउंडेशन या कोई और एनजीओ है उसके पास जाते हैं या पुलिस में कंप्लेन करते हैं तो वो बोलते हैं हमने ऐसे कुछ बोला ही नहीं है। So it's better to take in writing. उनको यही बोलना है ठीक है, हाँ, यू मीन्स दिस इज ऑल्सो वन मैसेज टू ऑल कि अगर आपको कोई भी सोसाइटी अगर आपको मना करते हैं कि हम पेट को अलाउ नहीं करते हैं तो आप उनको यही बोलना है कि आप आपके सोसाइटी लेटर हेड पे आप लिखे दो कि पेट इज़ नॉट अलाउड। फिर हमारी पाल लीगल टीम है, वो लीगल टीम के थ्रू हम उन्हें लीगल नोटिस देते हैं और हाउ दे आर रॉन्ग या इलीगल है ये हम उनको बताते हैं या उनसे हम वो जो लॉज है वो कैंसिल भी करवाए बहुत जगह। Right. Okay. अभी मैं थोड़ा पाल लीगल टीम के बारे में बोलता हूँ। जो मेरी पाल लीगल टीम है उसमें 25 एडवोकेट्स है एंड 10 एनिमल वेलफेयर ऑफिसर है। दिस इज़ द फर्स्ट लीगल टीम इन आवर इंडिया, क्योंकि अभी तक किसी ने लीगल टीम नहीं बनाई है। क्योंकि लीगल टीम बनाने के पीछे रीज़न यही है कि जो सोसाइटीज़ जो मैनेजिंग कमेटी सोसाइटीज़ है, जैसे अभी मैंने बोला वो एक रीज़न है, पेट ओनर को बहुत हैरेस करते हैं, उनको लिफ्ट यूज़ करने देते नहीं है। करना है तो सर्विस जो हमारे मेड या सर्वेंट जाते हैं मीन्स दे आर ट्रीटिंग आवर पेट एज अ सर्वेंट ना। वो तो अपना बच्चा है, वो हमारे साथ ही जाएगा ना लिफ्ट में, तो वो लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, अगर आपके सोसाइटी कंपाउंड में अगर डॉग या कैट है जो कम्युनिटी डॉग है उनको आप अगर फीड कर रहे हैं तो वो फाइन लगाते हैं आपके मेंटेनेंस में 1000, 2000, 5000 में डिपेंड्स ऑन सोसाइटीज़। तो ये इलीगल है। कोई भी मैनेजिंग कमेटी ऑफ सोसाइटी को पावर नहीं दिया है। इंडियन सोसाइटी बायलॉज जो उनकी बुक्स बायलॉज है वो बायलॉज में ऐसे कौन से भी उन्हें पावर दिया नहीं कि वो पेट ओनर्स या फीडर को पेनल्टी ले। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। मीन्स मोर देन अभी तक मैंने 4 साल में मोर देन 2500 से ऊपर केसेस हमने सॉल्व किए हैं और 100% सक्सेस, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। फर्स्ट अगर हम हमारा जो गूगल फॉर्म है वो भरने के बाद हमारे पाल लीगल टीम के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर दे आर अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट एंड एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया दिल्ली, मीन्स दे आर ऑथोराइज पर्सन। वो मैनेजिंग कमेटी से बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप रॉन्ग कर रहे हैं। Yeah. देखो, लेकिन वो कभी कभी नहीं समझते हैं, थोड़े अरोगेंट होते हैं, एटीट्यूड वाले होते हैं, देखते हैं लॉ क्या करना है। फिर विल अपॉइंट वन एडवोकेट। वो एडवोकेट उनको लीगल नोटिस देते हैं कि ये फाइन गलत है, ये लॉ है या ये लॉ के हिसाब से नहीं कर सकते। हम लोग सोसाइटी जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को भी हम इन्फॉर्म करते हैं, साइमल्टेनियसली ईमेल करते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। बहुत सारे सोसाइटीज़ में जो सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार है उन्होंने भी एक्शन लिए हैं और ये सब हम करते हैं फ्री ऑफ चार्ज। हम एक पैसा लेते नहीं है जो लीगल। देखो, ये इसके पीछे का एक रीज़न ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी मैं कोई मुझे ऐसे एक इशू है या हमारे सोसाइटी वाले हैरेस कर रहे हैं तो मैं बोलता था ठीक है ना, एडवोकेट्स को पास जाओ, एडवोकेट से अब लीगल नोटिस दो। और अगर एडवोकेट को भी अगर लॉज नहीं पता तो लॉज मैं बताऊंगा। नहीं, वो दे डिमांड फॉर 10,000, 5,000 फॉर नोटिस स्टार्टिंग। तो कभी कभी ये अपने फीडर्स है ना, इतने गरीब होते हैं
उनको फीडिंग के लिए पैसा नहीं मिलता, तो वो क्या बोलते, ठीक है बाबा जो होता है होने दो, मारते हैं मारने दो, लेकिन हमारे पास फीस देने के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो चॉल सिस्टम है, वहाँ बहुत सारे अपने गरीब फीडर होते हैं, उनको वो मुश्किल से उनको खाने के लिए भी पैसा, मीन्स पेट अपना सॉरी पेट फीडर्स के खाना देने के लिए भी पैसा नहीं, ऐसे भी बहुत है। मैं देखो बहुत सारे कैटेगरी के फीडर्स है, बंगले में रहने वाले भी है, बहुत बहुत बड़े अपार्टमेंट में रहने वाले भी है, स्लम में भी रहने वाले हैं, तो वी शुड गिव जस्टिस टू ऑल। Of course. स्लम में रहते तो मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा, अगर आप बहुत बड़े सोसाइटी में रहते हैं तो आई विल हेल्प यू, ऐसा नहीं है। वी हेल्प एवरीवन बिकॉज दे आर डूइंग दैट नोबल जॉब। Yeah. क्योंकि देखो आज ज़्यादा तकलीफ उनको ही है, आप स्लम में जाके देखो कितना हैरेसमेंट होता है उनको। तो ये लीगल टीम बनाने की यही है, और हमने बहुत सक्सेस किया है। और लीगल टीम जैसे ही ये बनती है, वैसे ही लोगों के मन में या सोसाइटीज ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप में मेरे वीडियोस भी जाते हैं, जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना लॉज के लिए। मैं देखो मैं मेरे खुद का कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं लॉ बोल रहा हूँ, ये लॉ है और आपको इसको इम्प्लीमेंट करना ही है लॉ को। तो बहुत सारे बोलते हैं कि सर नोटिस देने की जरूरत नहीं, आपके वीडियो ने काम कर दिया। मीन्स ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। Absolutely. Absolutely. आई फील प्राउड कि मैं इनके लिए आज कुछ कर रहा हूँ, मेरी वर्दी का जो पावर है और ये जो है मैं इनके लिए आज यूज कर रहा हूँ, Correct. दैट इज एंड फील प्राउड। Yeah. We are also proud of you, sir. थैंक यू। Yeah. Hence why you're the superstar. I just have one thing to say. अच्छा, you ask what's your question? No, nothing. Please continue. कि जितने हम पेट लवर्स हैं और जैसे ये सोसाइटीज और ये रास्ते की बातें हुई है, वो मैं जो नॉन पेट लवर्स हैं और जो नॉन एनिमल पीपल हुम आई कॉल हैं, मैं उनकी भी भावनाएं कभी कभी समझती हूँ, क्योंकि आई फील जहाँ तक कि हम पेट लवर्स हैं और एनिमल लवर्स हैं, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हम लोग एड्रेस नहीं करते। वी फील इट्स ओनली वन साइडेड, दे आर हार्मिंग अस, दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दैट। अभी मैं इतने जहाँ मैं रहती हूँ, मैं इतने लोगों को देखती हूँ अपने डॉग्स को वॉक कराते हैं। एक 300 रुपए का पेट स्कूपर मिलता है, जहाँ डॉग्स रोड पे पॉटी करते हैं, सुसु करते हैं, उनको लगा हाँ चलो हम रोड पे ले जाएंगे, उनको वहाँ पॉटी और सुसु करने दो, हमारे घर से और कंपाउंड से तो बाहर है, और बीएमसी वाले रास्ता साफ कर देंगे कल। दैट इज वेरी रॉन्ग। इमेजिन जो लोग इवनिंग वॉक कर रहे हैं और उनके जूतों में बार बार डॉगी का पॉटी आ रहा है, इट इज वेरी वेरी रॉन्ग। लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। लोगों को परवाह नहीं है। मैंने कितनी बार लोगों को बोला है कि यू जस्ट कैरी अ थैली, और 300 रुपए का मिलता है अमेजोन पे वो पूप स्कूपर, आप उठा के थैली में डालो और कहीं कचरे में फेंक दो। क्या होता है? अपना बच्चा ही है ना वो। अपना बच्चा है। अगर आप डॉग पाल रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दूसरे लोग क्यों भुगते हैं? जो आपका डॉग रास्ते में जो कर रहा है, अनहाइजीनिक जो पूरा सब चल रहा है, तो दूसरे लोग, नॉर्मल लोग क्यों भुगते हैं वो? तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बहुत जरूरी है, जो नहीं रियलाइज करते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील एक लॉ बल्कि आप लोग को बनाना चाहिए that please, if whoever poops, and I had said this, I had recommended this to our local BMC जो बोर्ड के थे, कि आप एक हर सोसाइटी में लेटर डालो कि आर पीपल, आर मेन एंड विमेन हु कम इन टू, जो झाड़ू बीएमसी वाले, वो आपके डॉगी का पॉटी नहीं उठाएंगे, आप खुद उठाइए, हम यहाँ पे कचरे के डब्बे इंस्टॉल करते हैं। मैंने कितनी बार लोगों को रोक के बोला है कि प्लीज, यू आर वॉकिंग योर डॉग इन फ्रंट ऑफ आवर गेट्स, इन फ्रंट ऑफ आवर बिल्डिंग, आप एटलीस्ट बी रिस्पॉन्सिबल कि आप उसका खुद पॉटी उठाओ। वेयर आर द डस्टबिन्स? BMC doesn't give us dustbins, हम लोग कहाँ डालेंगे? थोड़ी हम हाथ में लेके घूमेंगे, ये एटीट्यूड होता है। ऐसे है बहुत सारे लोग हैं, उनको ऊपर भी हम कंट्रोल, विच इज रॉन्ग। तो ये हमारी जो एनिमल लवर्स हैं, हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि आप प्लीज देखो कि आपकी सड़कें जो आप बाहर दूसरे वॉक करने वाले हैं, उनके लिए हाइजीनिक रहें। दूसरी बात, जितने हमारे फीडर्स हैं, मैं बोलती हूँ अगर तुमने इतने पैसे चलो डालें डॉग फूड खरीदने में, थोड़े और पैसे डाल के आप डॉग्स को स्पेइंग के लिए और न्यूट्रिंग के लिए भेजो।
नहीं तो पपीज होते जाते हैं, बिल्लियां पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। वो बहुत नेसेसरी है। यस यस बिकॉज देखो डॉग्स की भी इट्स अ पैक मेंटालिटी। जब वो उनको मालूम है यहाँ खाना मिल रहा है, वो उस लोकेलिटी से जाएंगे नहीं, करेक्ट? जब वो उस लोकेलिटी से जाएंगे नहीं और अगर उनके बच्चे पैदा होते हैं, इट द पैक बिकम्स बिग। और जब पैक में वो दम आ जाता है ना, देन इट कैन बी डेंजरस। जो फिर लोग बोलते हैं ना, अरे आपके कुत्ते ने काट दिया हमको तो हम क्या करें? I feel like there needs to be a consolidated program brought forward either by Yes. local government or something Yes. where in this area all dogs are being spayed or whatever it might be, because you have to control it, otherwise Yes. it's just going to keep happening. तो जितना आप उसमें भी पैसे डालो, पहले आप देखो कि आप फीडिंग के पहले आपका ग्रुप पूरी तरह वैक्सीनेटेड और पूरी तरह न्यूटर्ड और स्पेड है कि नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके एरिया के डॉग्स हैं, मैं जितने फीडर्स हैं, मैं सबको पहले ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट यू स्पेंड मनी ऑन दैट, फिर आप बाद में खिलाते जाओ। नहीं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेक्ट। क्योंकि देखो आज अगर मैं 10 डॉग को खिला रहा हूँ, कल अगर कोई मदर डॉग ने पपीज दिए तो डायरेक्ट 10 के 20 होते हैं। Exactly. क्योंकि वो 8 9 10 ही देते हैं ना। Yeah. कम से कम 9 10। तो अगर आज 10 के लिए वो जो लोकल पब्लिक को तकलीफ है या उनके लिए नुसेंस है, तो 20 के लिए क्या होगा? एग्जैक्टली। तो हमें दूसरों की भी भावना को, we have to understand other people's feelings as well. Yeah. Exactly, which is understandable. So guys, as we wrap up this podcast, I have one question for you both. What is one piece of advice that you would each like to give to the youth of today? The youth of today is that this is your one planet and this entire planet is your home. Look after it, nurture it, nourish it so that it remains a healthy planet for your future generations. And yes, fight for it. That's very important. Raise your voice and fight for it. Absolutely. Sudhir ji? Yes, अभी जो रवीना जी ने जो बोला है वही सही है। सेकंड थिंग, ये जो एनिमल्स बोले, ये डॉग या कैट्स है, ये हम जब भी हम बॉर्न हुए तभी भी इधर थे, हम उनके साथ खेले। अभी हमारे बाद जो हमारी जनरेशन है उनके साथ भी वो रहने वाले हैं, तो उनके साथ ही हमें रहना है। उनके साथ सहानुभूति, करुणा और एक सिंपैथी होना जरूरी है। कोएग्जिस्टेंस, यस। क्योंकि उनके साथ रहना, क्योंकि हम उनके बिना, या उन्हें आज कोई बोल रहा है कि चलो उसको वहाँ से रिलोकेट करें और जंगल में डाल, तो ये एक्सेप्ट भी नहीं है और ये अगेंस्ट लॉ है। रिलोकेशन इज क्राइम। इसीलिए आप उनके साथ कोएग्जिस्ट करके रहना है। सहानुभूति, करुणा और सिंपैथी, ये इनके साथ ही रहना है। और मैं समझती हूँ हर एक प्राणी, जैसे कहते हैं ना, हर एक पशु प्राणी, every animal, every living thing was put on this planet by God, whichever God you believe in. अगर उन्होंने ये धरती बनाई, अगर वो चाहते थे कि सिर्फ इंसान रहते इधर और जानवर और पेड़ नहीं होते, तो वो बनाते ही नहीं। हर एक जानवर, एक एक चींटी का भी काम है इस प्लैनेट पे। हर एक जानवर, हर एक पेड़ का काम है इस प्लैनेट पे। इट इज अ फुल इकोलॉजिकल साइकिल and a chain that we live in. So we have to learn to coexist without harming our cousins who are on this planet. वो हमारे साथ ही पैदा हुए, हमारे साथ ही जब ये पूरा ब्रह्मांड बना, हमारे साथ बने वो। तो ऊपर वाले ने कुछ सोच के डाला है। अब हमारी सभ्यता में हर एक भगवान का कोई ना कोई वाहन है, चाहे वो माँ दुर्गा का शेर हो या पशुपतिनाथ जो हमारे लॉर्ड शिवा हैं, उनके नंदी बैल हो, या उनके साथ जो कुत्ते हों। श्री साईं बाबा जी के पास भी कुत्ते उनके फेवरेट थे, डॉग्स। तो हर एक गणेश जी हो, उनके तो सर पे एलिफेंट था। तो जब लोग इन प्राणियों को हार्म करते हैं, मैं कहती हूँ तो तुमको मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो मंदिर जाओ ही नहीं, क्योंकि तुम समझे ही नहीं कि हमारी सभ्यता क्या सिखाती है। हर एक चीज की रिस्पेक्ट करना, हर एक चीज का आदर करना और हर एक जीवित चीज को प्रणाम करना जो इस प्लैनेट पे है हमारे लिए। सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टू बी लर्न्ड। Absolutely. I think that leading with empathy, and जब आप लोगों से बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि we are the top of the food chain, so we can do anything we want. I think that
mindset is very wrong because we're not the top of the food chain, we're part of a very delicate ecosystem. Exactly. And so it's our responsibility to take care of that ecosystem. And आप अगर भगवान में मानते हैं या जो यूनिवर्स में मानते हैं, जो भी हमें चाहिए जीने के लिए वो यूनिवर्स ने हमें दिया है. We don't have to keep doing more destruction. It's unnecessary. So I think it's crucial that people learn empathy, critical thinking, question the system, and take videos when you see crimes and try not to beat the abusers. But thank you both so much. जो आप कर रहे हैं for the environment, for animals, for humans is critical. We need more voices like you. Thank you so much. Thank you, Amy. Thank you for this podcast. Thank you so much. It's a great conversation, guys. I thought it was really good.